Hello students, I welcome you all for today's session. Well students, in the last session we did a chapter that is Hitler stole the pink rabbit, okay, if you all remember, and I hope you have completed the notes. Now students, there was a query which we received that is regarding the word meanings of the chapter that we did in the last session. So you don't need to worry students, because as the chapter does not have the word meanings, so that is okay. You don't There's no need to write leave space or write mention the word meanings, okay. So yeah, and if there is any particular difficult word that you find, as I have explained the chapter in the video very clearly, and all the words have been explained properly, in case if you still have any difficulty with any word, then please send us an email, and it will be clarified through the email ID, okay. So now in today's session now we are going to focus on your, since we have completed the chapter readings, so now we are going to focus on your writing section and grammar section, okay. So in today's session we are going to be discussing about article writing, okay. So now first of all, now the notes which you see in the video, it will be sent to you in the PDF file as well, एंड ये सारे नोट्स आपने अपनी कॉपी पे, ग्रामर की कॉपी पे, राइटिंग सेक्शन में, ओके. आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव योर ग्रामर बुक्स, ग्रामर कॉपीज़. सो ग्रामर कॉपीज़ के सेकंड पार्ट में, सेकंड हाफ में आप राइटिंग सेक्शन कर सकते हो. इन केस अगर आपने डिवाइड नहीं किया है, सो दैट इज़ ओके. आप राइटिंग सेक्शन के लिए एक अलग से कॉपी लगा सकते हो, ओके. और ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली आपकी PDF फाइल में भी मेंशन्ड होंगी, ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर टॉपिक आर्टिकल राइटिंग. नाउ फर्स्ट इज, व्हाई डू वी राइट आर्टिकल्स? Now, an article is basically a formal way of expressing about views, thoughts, opinions, and findings, or a reason, or a research. So basically articles क्यों लिखे जाते हैं? Articles इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, बाकी लोगों की ओपिनियंस हमें पता चले उस टॉपिक के रिगार्डिंग. सो दैट इज़ कॉल्ड article writing. It is basically written for a magazine or a newspaper. So if you pick up the newspaper, you will get to see many articles these days, okay. The articles could be on corona, or the articles could be on how to build your immunity, what kind of food we should eat, how to protect ourselves, okay. So that is the purpose of writing article. Now I'm going to discuss the steps of writing an article. So there are about 4 to 5 steps that we need to follow. Now first student, I'm just going to explain the steps, and then we will do an example. We'll discuss an example of article. Now first step is writing the title or the heading. Now how do you choose a title or a heading? It should be a word, or it can be a phrase, it can be one line, depending upon the theme of the topic. Whatever the मेन हम ये कह सकते हैं मेन थीम क्या है टॉपिक का, उसके हिसाब से हम हेडिंग चूज़ करेंगे. एंड जो हेडिंग लिखेंगे हम, वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है, ओके. जस्ट बिलो द हेडिंग फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द राइटर और द ऑथर. नाउ जो नेम ऑफ द राइटर या ऑथर है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है, ओके. देन कम्स द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन, नाउ यू लीव अ लाइन छोड़ने के बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन, ये वर्ड इंट्रोडक्शन नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, बट येस इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं? इट इज़ रिटन इन 1 or 2 sentences to introduce the topic of the question. It can start with an important fact or a data in order to attract readers' attention. इसका मतलब ये है कि जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो उस टॉपिक पे बेस्ड होनी चाहिए, एंड वो एक अच्छा सेंटेंस, अच्छी गुड ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, ओके. देन कम्स द कंटेंट. अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट मस्ट इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. कंटेंट इज़ द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है. उसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग जिस टॉपिक पे हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, एंड उसमें रीजंस होने चाहिए
कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कॉजेज़. सो ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल गो इन योर कंटेंट पार्ट. ओके. देन कमिंग टू द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. जब कंटेंट हमारा फिनिश हो जाता है तब एक हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं. ये एक बेसिकली लाइन होती है जहाँ पे हम रीडर्स को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे अब टॉपिक का क्लोजिंग होने वाली है, टॉपिक एंड होने वाला है. ओके. Yes, so it will tell us how where the topic is being concluded. Any suggestion or advice can be mentioned in the concluding line. So अगर हम कोई suggestion या advice देना चाहते हैं तो वो हमारी concluding line में आता है. Then the last step is conclusion. Okay, conclusion में हम क्या लिखते हैं? It is a final statement that indicates the closing of the topic. It can be a proverb, idiom or a phrase. सो लास्ट फाइनल लाइन, जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं आर्टिकल में, दैट इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू विच इज़ बेस्ड ऑन योर आर्टिकल राइटिंग टॉपिक एंड आई विल सेंड इट ऑन द PDF फाइल ऑल्सो. इसमें आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ होममेड फूड इन बूस्टिंग योर आवर इम्यूनिटी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि हमारे लिए घर का बना हुआ खाना खाना कितना ज़रूरी है ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू कीप अस हेल्थी, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. होममेड खाने से वो कैसे इम्प्रूव होती है. ओके. एंड आप ये वाले पॉइंट्स, आई एम गिविंग यू द हिंट्स, आप ये पॉइंट्स या हिंट्स यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क, अपने आर्टिकल राइटिंग में. So homemade food is always fresh. It contains necessary vitamins and nutrients. It is prepared hygienically, means in a neat and clean way. The ingredients can be added as per the taste and liking. So जो ingredients हैं, जैसे कुछ भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें हमने कितनी नमक, कितनी मिर्च, कितना क्वांटिटी में डालना होता है वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. इम्यूनिटी फूड इज़ नीड ऑफ द आवर. नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है ये समय की ज़रूरत है अभी. इज़ एज द वर्ल्ड इज़ कैप्चर्ड इन द हैंड्स ऑफ पैंडमिक सिचुएशन. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में ये पैंडमिक फैला हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. सो वी नीड टू ईट होम मेड फूड टू build our immunity. Okay, so this is an activity that you will be writing in your writing copy only, and you will click a photograph of this and of the activity that you have written the paragraph and in your grammar writing copy, and then send it on the date which is mentioned on the PDF file. Okay students, I hope it is clear. Now let us discuss one example of your article writing on your BBC. Now in your BBC students, as you can see, you need to go to module 4 that has the writing section 3. Okay, writing section 3 has article, speech, debates. And now coming to the first sample, that is on the worksheet number 147 as you can see. ठीक है. अब यहाँ पे एक सैम्पल आर्टिकल लिखा हुआ है, सेम फॉर्मेट जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम ये reading I'll explain and I'll discuss the format once again. So as you can see, yeah, so this article writing sample is about benefits of traveling. कि ट्रैवलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं. सो सी, टाइटल हमने डिस्कस किया था. टाइटल यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है एंड उसके नीचे हम क्या लिखते हैं कि किसने लिखा है, द राइटर. सो वी राइट इट इन ब्रैकेट्स बाय, यहाँ पे है मुसाफिर राज. ओके, एंड देन वी विल लीव वन लाइन, हम एक लाइन छोड़ेंगे. एक लाइन छोड़ के उसके बाद हम ये हमारी इंट्रोडक्शन लाइन है. सो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंट अगस्टाइन द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डोंट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज. यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी ओपनिंग लाइन लिखी हुई है एज यू कैन सी. ठीक है, जिसका जो सेंट ऑगस्टाइन ने बोली है. और ये क्या ओपनिंग लाइन है कि हाँ, जो पूरी वर्ल्ड है वो एक किताब की तरह है और जो ट्रैवल नहीं करते हैं उन्होंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा होता है.
Now we're going to come to the next part, that is the content. So as you can see, the content is put in the other bracket. Now let's see content में कितनी information यहाँ पे लिखी हुई है. Traveling is man's instinctive behavior. Instinctive का मतलब होता है curious. ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए हमेशा interested होना, curious होना. He has been traveling since times immemorable to search for food, to satisfy his curiosity, to explore new lands and to enjoy himself. So इंसान ने ट्रैवलिंग कब से शुरू कर दी थी? एंशियंट टाइम से. क्यों? जब वो खाना सर्च करते थे, या फिर जब वो अपनी क्यूरियोसिटी और नई चीज़ें ढूंढने के लिए, या फिर वो नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे, या फिर एंजॉय करना चाहते थे. ट्रैवलिंग ऑफर्स ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फन, एडवेंचर एंड डिस्कवरी. सो ट्रैवलिंग की वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. इट प्रोवाइड्स अ वेलकम चेंज ऑफ प्लेस एंड फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम एंड स्ट्रेस. ट्रैवलिंग की वजह से हमें नई जगह देखने को मिलती है, हमें कुछ फ्रीडम मिलती है, और हम अपने जो बोर्डम एंड स्ट्रेस हैं उससे बाहर आ जाते हैं. इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड नेशंस टुगेदर and thus helps them to understand each other's customs, traditions, beliefs, heritage and lifestyle. ये भी बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स. जब हम किसी अलग जगह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें वहाँ के कल्चर के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, उनका ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें हम सीखने को मिलते हैं. दिस लीड्स टू ग्रेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड वर्ल्ड पीस. इन सब ट्रैवलिंग की वजह से, बेनिफिट्स की वजह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. हम एक दूसरे को टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना सीख लेते हैं, एंड पूरी दुनिया में पीस होता है. ओके, शांति, सुकून बना रखता है. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट. द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल हाउएवर इज़ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इट ब्रिंग्स. ट्रैवलिंग का एक और फ़ायदा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो जिस भी जगह पे जाते हैं उस जगह को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है. मतलब वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं हम जाके, तो उनके लोगों को फ़ायदा होता है. ठीक है. इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स बिजनेस, ट्रेड, आर्ट एंड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी. सो कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर को बेनिफिट मिलता है? वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहाँ पे बिज़नेस उनका बढ़ता है. ओके. और ट्रांसपोर्टेशन हम वहाँ पे यूज़ करती हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट होती है. हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जहाँ पे हम जाके होटल्स में स्टे करते हैं, उनकी सर्विसेज, तो वो हॉस्पिटैलिटी में आ जाती हैं. ओके. सो ट्रैवलिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. नाउ कमिंग टू योर क्लोजिंग लाइन. Thus, travel has many-fold benefits. Many-fold का मतलब होता है बहुत सारे benefits होते हैं for individuals, professionals, organizations, communities, cultures and countries. So traveling के benefits सबको होते हैं. So pack your bags and go. So this is the closing conclusion. So इसलिए हमें अपने bags pack करने चाहिए और चले जाना चाहिए कहीं घूमने. Bon voyage means happy journey. Okay students. So I hope you have understood the example of the article writing that I have just explained right now, and there is an activity which I have also explained, which you need to do in your writing copies. Okay students, so I hope it is clear for you, and in case अगर आपको कोई भी डाउट होता है, so you can then write on the email ID, that is classvii.vips.ldh@gmail.com, and you can send it there. So whatever doubts you have, it will be clarified through the email ID. Okay students, so this is all for today's session. So I'll meet you in the next session. Till then, all of you stay safe and be healthy.